सतनाम। धन वाहिगुरु साहिब जी। सतगुर नूं सब को वेखदा, जेता जगत संसार। डिठे मुक्त ना होवई, जिचर शब्द न करहे विचार। जीता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासण दास कह जन नानक, जिहा तू कराही तिहा हाँ करी वखियान। धन वाहिगुरु साहिब जी। दोष ना देहो राय नो, मत चले जा बुढ़ा होवे। दोष ना देहो राय नो, मत चले जा बुढ़ा होवे। गल्ला करे कनेरियां तां अन्ने, पवना खाती टोवे। गल्ला करे कनेरियां तां अन्ने, पवना खाती टोवे। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ। जाहर पीर जगतगुरु बाबा सिख धर्म दी बानी धन सतगुरु गुरु नानक साहिब जी दे पवित्र मुखार बिंद तो उच्चारण कीते हुए पावन श्लोक जिन्हां दी लड़ीवार विचार व्याख्या आप जी निता प्रति सरवण करते आ रहे हो। विचार अधीन 32 नंबर श्लोक जिसका मूल पाठ अपने आप जी ने सरवण किया है। ये पावन श्लोक ही आज की विचार का केंद्र है। विचारां की आरंभता तो पहला गुरु बख्शी गुरु फतेह नाल सांझ पाइए। सारे प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी श्लोक की आरंभता विच फरमान करते ने, दोष ना देहो राय नो, मत चले जा बुढ़ा होवे। दोष शब्द का अर्थ है कि भाई तुसी उलामा ना देवो राय नो। राय का अर्थ है कि जिहड़ा इंसान माया के मोह में खचत है, माया के मोह में गलतान है, जो मायाधारी है, जिसने माया को केवल धारण किया हुआ है। माया तो भाव केवल पैसा नहीं, हर एक वो चीज़ माया है जिहड़ी चीज़ सानू रब तो प्रभु तो दूर लैके जाती है। गुरु अमरदास महाराज जी आनंद साहिब की बाणी अंदर आखदे ने, यह माया जित हर विसरै, मोह उपजै भाव दूजा लाया। कि भाई माया वो चीज़ है
ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ, ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਹੁ ਰਾਏ। ਇਹ ਭਾਈ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੇ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਦਈਏ, ਦੋਸ਼ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਗੱਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖੀਏ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਨੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਦਈਏ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਗੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੋਗੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਗ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਾਪ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਬੁਰਾ, ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਾਪੀ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਪਾਪ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀਏ। ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖੀਏ। ਰੋਗੀ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਸਗੋਂ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੇ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਸਗੋਂ ਗੱਲ ਮੋਹ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਮੋਹ ਦੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੀਏ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਖੀ ਸੰਖੇਪ ਮਾਤਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵੀ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਅੰਦਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੇ ਕੇ ਜਗਾਇਆ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੀ। ਪਰ ਘਰ ਗਿਆ, ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੂਈ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੂਈ ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸੂਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸੂਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਮਤਾ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਖੂਨ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਤਾਨੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਵਾਰ ਕੇ, ਕਪਟ ਕਰਕੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ
पर जे सोई नाल नहीं जानी तो तेरा धन भी नाल नहीं बना। हुण सतगुरां ने उस इंसान दे नाल नफरत नहीं की, दुनी चंद दे नाल दोष ना देहु राय नूं उसनूं दोष नहीं दिता, सगों उसनूं गुरदेव सच्चे पातशाह जी ने जगाया, सुचेत किया। जो माया दे ममता दे मोह में फसिया होया सी, सतगुरां ने उसनूं सुचेत किया, माया दे मोह तो बाहर कढ़िया। ते पातशाह कहंदे ने भाई गल माया धारी दी ना करिए, सब माया दे मोह दी करिए। ते गुरु अर्जन पातशाह महाराज आखदे ने कि भाई ये जो मोह है ना, ये बहुत बलवान है, बड़ा ताकतवर है। ये मोह युद्ध का सूरमा है। इस मोह ते फतेह पाउणी, इस मोह नूं त्यागना ये बड़ा औखा है। मोह तो बाहर निकलना बड़ा औखा है। हे अजित सूर संग्राम अत बनना बहु मर्दना। ते मोह का प्रभाव केवल मनुख ते ही नहीं, पशु पंछियां ते देवतियां ते भी है। गण गंधर्व देव मनुष्य पश पंखी बेमोहना। मोह का प्रभाव देवतियां ते मनुखा ते पशु पंछियां ते भी है। पर पातशाह कहते हैं जिस मोह तो बचना है, हर कर्ण हार नमस्कार। जिस प्रभु ने ये मोह पैदा किया है, उस प्रभु के नाल जुड़िए, उसका चिंतन करिए, उसके गुणां नूं विचारिए, उसके गुणां नूं धारण करिए। कुर्बान किता तिसै विटों जिन मोह मिठा लाया। उस प्रभु तो कुर्बान जाइए, उस तो सदके जाइए। ते पातशाह आखदे ने दोष ना देहु राय। जे केवल मनुख नूं दोष देंदे रवांगे, ओदे जिहड़े असल ऐब ने उसते विचार ना करांगे ते जिहड़े ऐब ने दूर नहीं होणगे। जे डॉक्टर किसी रोगी दे नाल नफरत करी जाए, पर वो रोग वाल ध्यान ना देवे, पर रोग फिर कभी खत्म नहीं हो सकता। हुण डॉक्टर रोगी वाल नहीं ध्यान दे रहा, सब रोग वाल दे रहा है। किस नूं केड़ा रोग लगा है, इस रोग ते केड़ी दवा काम करेगी। ते बादशाह कहते हैं भाई मायाधारी जिहड़ा मोह दे विच जकड़िया होया है, जिसने मोह ने जिसनों अपने अंदर बसाया होया, जकड़िया होया है, बादशाह कहते हैं उसके मोह ते गल करिए, मोह ते विचार करिए, ताकि मोह किवें कटिया जाए। किवें मैं मोह तो बाहर आके प्यार विच विसरा। ते पातशाह ने दोष ना देहु राय नो, मत चले जा बुढ़ा होवे। सतगुरु जी फरमाउंदे ने भाई जिहड़ा इंसान माया के मोह विच ही बुढ़ा हो गया है, बचपन जवानी बुढ़ेपा जिस इंसान का माया के मोह विच ही बतीत होया है, मत चले, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। जिवें गुरु तेग बहादुर सिंह महाराज जी अपने श्लोक विच मनुख की हालत नूं बयान करते हैं कि मनुख की अवस्था की है, शरीरिक अवस्था की है, पर हजे भी रब के नाम के नाल ये इंसान नहीं जुड़िया। पातशाह आखदे ने सिर कंपियो
पग डगमगे, नैन जोत ते हीन, कहो नानक ए बिद पई, तो न हरस लीन, मत चले जा बुढ़ा होवे। बुढ़ा हो गया है पर मत भी गुरु वाले पासों खत्म हो गई है। सिर कंप्यो पग डगमगे, सिर कंबदा है, पैर भी डोलते ने, सही चाल चली नहीं जाती। नैन जोत ते हीन, अखा भी जोत तो हीणियां हो गई ने, भाव को नजर भी नहीं रही पहला वाली, नजर भी कमजोर हो गई है। कहो नानक की बिद पाई, ये अवस्था बन गई है। पर बादशाह कहते ने तो ना हरस लीन, हजे भी ये मन हरि दे रस विच लीन नहीं होया। जा बाबा फरीद साहब अपने श्लोक विच फरमान करते ने, फरीदा तन सुक्का पिंजर किया, तलियां खुंडे काग, अजय सो रब ना बोड़ियो, देख बंदे के भाग। बाबा फरीद साहब आखते ने, देखो बंदे के भाग, कर्म देखो। तन सुख गया है, बुजुर्गी आ गई है, तन सुक्का पिंजर दिया, तलियां खुंडे काग, हजे भी विकार इसनूं चोभा ला रहे ने। पर आखदे ने हजे अजे सो रब ना बौड़ियो, देख बंदे की भाग। पर हजे भी रब अंदर बौड़िया ने, हजे भी रब की अंदर याद पैदा नहीं हुई, क्योंकि मत चले जा बुढ़ा होवे। मत रह जाती है, जिहड़ा इंसान माया धारी, माया विच बुढ़ा हो जाता है, उसकी मत होछी बन जाती है, मत धर्म वाले पासों कमजोर हो जाती है। बाबा कबीर साहब जी का पावन बचन है, वो आखदे भाई जी रब नूं चेती करना है ना, तो बुढ़ेपा आउण तो पहला पहला तू चेती कर लै। हो सकता है रोग आ जाए, हो सकता है मौत आ जाए, तो हो सकता है तेनों सुनना बंद हो जाए, तेरा बोलना बंद हो जाए। जब लग रोग जरा नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बानी, भज लेहे रे मन सारंग पानी। हे मना, बुढ़ेपा आउण तो पहला, मौत आउण तो पहला, किते ये जबान दे बोल खत्म ना हो जाए, बोलिया ना जाए, उस तो पहला तो रब नूं चेते कर। अब ना भजस, भजस कब भाई, आवे अंत ना भजिया जाए। ये भाई जे तू हुण नहीं चेते कर रहा, ते अखीर वेले तू किवें चेते कर लवेगा, जे तेरी सारी जिंदगी ही मोह ममता विच, विकारां विच बतीत हो गई है। फिर अखीरले समय रब नाल जुड़ना ये बहुत मुश्किल है। अखीरले समय अपने जीवन को सवारना ये बड़ा मुश्किल है। भाई से भाई गुरदास जी अपने कवित अंदर वचन करते हैं, वो भी इहो विचार समझा रहे हैं जो गुरु नानक साहब जी अज दे श्लोक में सानू उपदेश दे रहे हैं। भाई गुरदास जी आखते हैं, जैसे घर लागे आग, जाग कुआ खोदियो चाहे, कारज ना सिद्ध होए, रोए पछुताइए। घर में अग लगी होवे ते बंदा आखे मैं हुण खूह पट्टा, खूह पट के पानी कड्डा ते पानी दे नाल अग बुझावां, ते इस तरह अग नहीं बुझेगी, कारज ना सिद्ध होए। एक कारज सिद्ध नहीं होएगा, पानी का प्रबंध पहला करना पवेगा, करके रखना पवेगा, किसी वेले अग लग सकती है।
पानी का प्रबंध होवे, घर विच पानी नेड़े होवे, फिर ते अग बुझाई जा सकती है। तो जे बंदा आखे कि लगी हुई अग नूं मैं खूह पुट के बुझा लवांगा, तो वो इंसान की मूर्खता होवेगी। जैसे तो संग्राम समय सिखियो चाहे वीर विद्या, अनिथा उदम जैत पदवी ना पावे। युद्ध लगा होवे, जंग लगी होवे, ते बंदा आखे मैं पहला जंग दे गुण वो सीख लवां, शस्त्र विद्या सीख लवां, फिर जाके मैं मैदानी जंग अंदर दुश्मनां ते फतेह पावांगा। पर ऐसा सोचने वाला इंसान भी मूर्ख है। जंग लगी है, दुश्मन चढ़ के आ गया है, तो तू हजे जंग की ट्रेनिंग लैनी है, गुण सीखना है। नहीं, जंग लगन तो पहला तेरे को जंगी करतब होण, जंग के गुण होण, शस्त्र चलाउण दे, मैदानी जंग विच जुझण दे तेरे को गुण होण, तेरे को तजर्बा हो। भाई गुरदास जी आखते ने, जैसे निस सोबत संगाती चल जात पाछे, भौर भय भार बांध चले कत जाइए। जथा जा रहा होवे तो एक इंसान आखे कि मैं आराम कर लवां, पर दूसरे चले जान। हुण जितना चिर उस मनुख ने आराम किया है, ते जिहड़े दूसरे साथी ने वो कई पैंडे अगे चले गए होणगे, ते जिहड़ा जिसने आराम किया जो सुता रहा एक इकल्ला रह गया, दूसरा उहदे कोल सवार है, ते उसनूं डाकुआं दा चोरां दा खतरा भी है। हाँ भाई, जे जथे दे नाल रहना सी ते फिर नींद त्यागनी पैनी सी, फिर सौण वाले पासे नहीं सी जाना चाहिए, जथे दे नाल टुरना चाहिए सी। पर उस इकल्ले इंसान नूं भी फिर पछताउणा पैंदा है। हुण तीन उदाहरणां भाई साहब ने दित्तियां ने। हुण तीन उदाहरणां दे के असल जो गल समझाउणी चाहुंदे ने, कहंदे ने तैसे माया धंध अंध अवध बिहाए जाए। भाई गुरदास जी आखते हैं कि सारी जिंदगी धंधिया विच, अज्ञानता विच, माया के मोह विच लंघ जाती है। आखते ने अंतकाल कैसे हर नाम लिव लाइए, पर अखीरले समय भाई किवें सुरत उस रब विच जुड़ेगी, क्योंकि सारी जिंदगी का प्रभाव इस मन ते है, इस सुरत ते है। सारी जिंदगी सुरत मोह ममता वाले पासे रही, पर सुरत भी उस पासे मजबूत हो चुकी है, माया वाले पासे। तो फिर आखी कि अखीरले समय मैं हुण सुरत नूं इस पासे जोड़ लवां। ऐसे बापने मुश्किल है, हुंदा नहीं। आवे अंत ना भजिया जाए, अब ना भजस भजस कब पाई। आवे अंत ना भजिया जाए, अखीर जो अंत आ जाता है कि भाई उदों फिर रब नूं नहीं भजिया जाता, रब नूं चेते किया जाता। तेरे कोल समा है ते आखदी ने दोष ना देहो राय नो, मत चले जा बुढ़ा होवे। गल्ला करे कनेरियां, कनेरियां का अर्थ है बहुतियां। पातशाह कहते हैं जिसकी मत गुरु वाले पासे नहीं हजे आई, जिसकी मत गुरु नाल नहीं जुड़ी, गल्लां करे कनेरियां, वो बथेरियां गल्लां करदा है। माया दीयां गल्लां, विकारां दीयां गल्लां, गल्लां ते बहुत करदा है। पर बादशाह कहते ने तां अन्ने पवना खाती टोवे। ऐसे मनुख दे अंदर हनेरा हुंदा है, ऐसे मनुख नूं आत्मिक जीवन की सूझ ते समझ नहीं हुंदी।
ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਟੋਵੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਡਿੱਗਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ, ਖੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕਣਾ, ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਖੱਡੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕਾਮ ਦੀ ਖੱਡੇ ਅੰਦਰ, ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਖੱਡੇ ਅੰਦਰ, ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਖੱਡੇ ਅੰਦਰ, ਕਦੀ ਮੋਹ ਦੇ ਟੋਏ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੱਡੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਅਵਗੁਣ ਨੇ ਨਾ ਉਨੇ ਖੱਡੇ ਨੇ, ਉਨੇ ਟੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨ ਨੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਟੋਏ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਹੈ, किस खड्डे अंदर जा पैना है। भ्रम की कोई तृष्णा रस पंकज अत तीखण मोह की फास, भरमा दी अंदर खुई है। तृष्णा रस पंकज, तृष्णा का अंदर चिकड़ है। अत तीखण मोह की फास, पर मोह की फाई की गल विच पई है। ते बादशाह कहते ने इस चिक्कड़ अंदर, इन्हां टोया डब्बिया अंदर उही इंसान डिगदा है जिहड़ा आत्मिक तल ते अन्ना है, पर जो नाम दे नाल जुड़िया है वो डिगदा नहीं, वो डोलदा नहीं। अमृत नाम निर्मोलक हीरा, गुर दीनो मंतानी, डिग्या ना डोले, दृढ़ कर रहियो पूर्ण होए तृप्तानी। बादशाह कहते हैं वो इंसान ना विकारां विच डिगदा है, ना भरमां विच डोलदा है। क्यों? किसनूं? जिसनूं आत्मिक जीवन की सूझ है, जिसने अपनी मत गुरु चरणा नाल जोड़ी है, जिसने आत्मिक जीवन की सूझ ते समझ बाणी दे विचों प्राप्त की है। ते बादशाह कहते ऐसा इंसान फिर कभी डोलदा नहीं, कभी विकारां दे खड्डियां विच डिगदा नहीं। ऐसा इंसान, ऐसा सेवक गुरमुख उते शब्द दा, बाणी दा पल्ला फड़ के चलदा है। रख रख चरण धरे दी चारी, उहदा एक एक कदम विचार दे नाल पुटिया हुंदा है, समझ दे नाल वो पुटदा है। गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कह सोई भन मानो, हर हर कथा निराली। उते गुरु की चाल दे नाल चाल मिला के चलदा है भाई। जिहड़े गुरु की चाल दे नाल चाल मिला के चलदे ने, वो कदी विकारां दे टोए खड्डियां अंदर डिगदे नहीं है। मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, जिहड़े रब नूं मनण वाले ने, उहदे नाम नूं मनण वाले ने, उन्हां दे मार्ग विच कोई चीज़ रुकावट नहीं बनती। उन्हां दा मार्ग सुहेला हो जाता है। आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता, परमेश्वर बनत बनाई, फिर डोलत कतहु नाई। उन्हां दा मार्ग बड़ा सोहना हो जाता है, सुहेला हो जाता है। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कोवड भागी पाए, कोट जन्म के किल विखनासे, हर चरणी चित लाए। सो अज दे विचार अधीन श्लोक अंदर गुरु साहब जी ने सानू इहो उपदेश दिता है कि भाई साडे अंदर जो विकार ने, मोह है, विकारां दे टोए ने, खड्डे ने, जो सानू सही मार्ग ते चलन नहीं देंदे, जिन्हां दे विच साडा मन डिगदा है। सो इस मन नूं आत्मिक जीवन की
समझ बख्शिश करिए ताकि ये मन विकारां तो रहत हो के निर्मल अते सचियारा बन के साडा मन जिउ सके। सो गुरु साहब कृपा करन। कोई भुल सुख दी खिमा अदब सत्कार नाल आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की